تو میری آواز پہنچ رہی ہے صحیح؟ جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیے اچھا، تو آج ہم اللہ کے نام سے انشاءاللہ اپنی یہ پہلی کلاس کا عربک سیکھنے کی، عربی کو بولنے کی اور ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دعا کر لیں. آپ میرے ساتھ بولیں گے. ہم مل کے دعا کرتے ہیں. ربی زدنی علما. بولیں ربی ربی زدنی علما. زدنی علما. ربی اشرح لی ربی عاصمی صدری صدری ادنی ویسر لی ویسر لی امری امری واحلل واحلل عقدة عقدة من لسانی من لسانی یفقہ یفقهوا قولی. قولی. جی، تو اب آپ توجہ سے آپ نے بیٹھنا ہے. آپ کی نظر اسکرین کے اوپر ہونی چاہیے اور آپ کے کان میری آواز پہ ہونے چاہیے. پوری توجہ سے آپ نے سننا ہے اور غور سے آپ نے دیکھنا ہے تاکہ کوئی چیز آپ مس نہ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ یس. آپ نے کاپی پینسل اپنے پاس رکھی ہوئی ہے سب نے؟ جی ہاں شاباش. کاپی پینسل اپنے سامنے اپنے پاس رکھیں. تو اب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. چلیے آپ پہلی سلائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں. یہ جو پہلی سلائیڈ ہے یہ بنیادی طور پر کس کے لیے ہے؟ گریٹنگز کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ چیزیں گریٹنگ کا تو آپ کو پتہ ہے. جب آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں، کسی سے بات کرنے کا آغاز کرتے ہیں تو پھر آپ کچھ جملے بولتے ہیں، کچھ الفاظ بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ انگلش میں ہم جسے گریٹنگ کہتے ہیں اسے ہم اردو میں آداب عرض کہتے ہیں. تو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ عربی میں اس کو تحیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تحیہ کہتے ہیں. آپ جب میں آپ سے کوشچن کروں تو آپ نے فوراً اپنا مائک کھول کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ یس. جی یہاں جواب دیتے ہیں. اچھا، جب ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں، کسی کو آداب کے طور پر بلاتے ہیں تو یہ لفظ میں نے لکھا ہے اردو میں آداب. آداب کا عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اہلن. کیا بولتے ہیں؟ اہلن. اہلن اہلن. مرحبا. کیا بولتے ہیں؟ مرحبا. 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 آپ مہمان آتے ہیں. ہاں مہمان آتے ہیں. ہاں مہمان آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انکل آداب، آنٹی آداب بولتے ہیں نا آپ. یا السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم کے بعد آپ کہتے ہیں آداب انکل، آداب بھائی جان، آداب ماموں. ایسے ہی بولتے ہیں نا. تو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہلن. اہلن. مرحبا. کیسے کہیں گے؟ مرحبا. اہلن. مرحبا. ہاں مرحبا. صحیح ہو گیا؟ اچھا، اب ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلیں. یہ لکھا ہوا ہے، میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ نام. کیا ہے یہ؟ نام. نام کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمن. کیا کہتے ہیں؟ اسمن. نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسمن. اچھا، آگے اگر میں یہ کہوں کہ میرا نام، یہ میں نے یہاں لکھا ہے میرا نام.
जब मेरा नाम आप बोलेंगे तो इस्मुन के साथ या लग जाएगा। क्या लग जाएगा? या लग जाएगा। मेरा नाम, तो मैं कहूंगा इस्मी। क्या कहूंगा? इस्मी। इसलिए अभी आप जरा ये गौर करो। हाँ, उर्दू में आपने ये देखा, मेरा पहले आया और नाम बाद में आया, यानी प्रोनाउन पहले आया और नाउन बाद में आया। अरबी में ये उलट है, पहले आएगा नाउन, बाद में आएगा प्रोनाउन। तो इस मुन के साथ जब आप या लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? इस्मी। क्या बनेगा? इस्मी। उसका मतलब क्या होगा? मेरा नाम। तो इस्म के साथ जब आप या लगा देंगे तो ये बन जाएगा इस्मी। और इस्मी का मतलब क्या होगा? मेरा नाम। मेरा नाम, मेरा के साथ माना दोनों के हो सकता है, बॉयज के लिए भी और गर्ल के लिए भी, दोनों ये कह सकते हैं मेरा नाम इस्मी। क्या होगा? इस्मी। इस मुन से आपने या लगा दिया तो क्या बन जाएगा? इस्मी। और इस इस्मी का मतलब क्या है? मेरा नाम। ठीक हो गया? क्या हो गया? सब जरा बताओ, इस्मी। बोलो जरा। इसमें इसमी इस्मी। हाँ, अमान आप बोलो, इस्मी। इसमी हाँ, हमारा आप बोलो, इस्मी। इसमी इस्मी। शाबाश, माशाअल्लाह। आप तो बहुत जल्दी अरबी सीख लेंगे, मुझसे भी आगे निकल जाएंगे आप सब, अगर आपने तवज्जो से इसी तरह आप सुनते रहे। जी चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे चलें। अच्छा, वो था मेरा नाम। अब मेरा नाम के बाद अगर मैं जानना चाहता हूँ कि साइम से मैं पूछना चाहता हूँ तो वो क्या होगा? तेरा नाम। ऐसा ही है ना? तेरा नाम। तो तेरा नाम का क्या, कैसे अरबी में बोलेंगे? इस्मु का। इस्म के साथ क्या लगाएंगे? का लगा देंगे। का के ऊपर जबर, साइम के लिए का के ऊपर जबर आएगी। इस्मु का, तुम्हारा नाम। क्या होगा तुम्हारा नाम? इस्मु का। इस्मु का। या जब हम सांस को तोड़ेंगे, इस मुख, दो तरह से बोलेंगे, इस मुख या इस मुख का। अच्छा, ये तो हो गया तेरा नाम का मतलब हो गया काफ से। और अगर हम कहेंगे उसका नाम, अगर मैं सामी कहता है, क्या नाम उसका, साइम का नाम बोलना चाहता है और साइम का नाम उसको नहीं पता, तो कहेगा, क्या कहेगा? इस्मुहु। इस्मुहु। इस्म के साथ क्या लगा देंगे? हाँ लगा देंगे। इस्मुहु। या बोलेंगे इस्मुह। क्या बोलेंगे? इस्मुह। इस्मुह। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आप कह रहे थे उसका नाम इस्मुहु, तेरा नाम इस्मु का, ये था बॉय के लिए। और हम गर्ल के लिए क्या बोलेंगे? तेरा नाम हम कहेंगे इस्मु की। काफ के नीचे क्या होगा? जेर आ जाएगी। इसको हम जेर कहते हैं, इस निशानी। इस्मु की। क्या होगा? इस्मु की। अच्छा, अब हम कहेंगे उसका नाम। उसका नाम का क्या मतलब? कैसे बोलेंगे? हम हा लगा देंगे। हा अलिफ हा। इस्म के बाद हा अलिफ हा लगा देंगे। इस्मुहा। इस्मुहा। क्या बोलेंगे? इस्मुहा। अच्छा, अब हमने मेरा नाम इस्मी, तेरा नाम इस्मु का, उसका नाम इस्मुहु, फिर घर के लिए तेरा नाम इस्मु की, और घर के लिए उसका नाम क्या होगा? इस्मुहा। तो ये आपको पता चल गया अभी, या मैं दोबारा इसको रिपीट करूं? समझ आ गई आपको? नहीं आई? जी सामी, आई है आपको समझ? जी ताहिर को आई है समझ?
आइए समझ बेटा। जी। अच्छा चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपने 4 चीजें आपने सीख ली हैं, या इसमी, इसमुका, इसमुहु और इसमुकी, इसमुहा। ठीक हो गया। ये आपने या, काफ 2 मरतबा और हा 2 मरतबा। मेरे नाम के साथ या आएगी इसमी, तेरे नाम के साथ इसमुका का आएगा, उसके नाम के साथ हा आएगी इसमुहु। फिर गर्ल के लिए तेरा नाम इसमुकी और घर के लिए उसका नाम इसमुहा। पक्का हो गया? शाबाश। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा पहले तो हम बात कर रहे थे सिंगल की, एक एक की। साइम की बात की, मैंने अपनी बात की, ठीक है। साइम, सामी की बात की, शाहिर की बात की, वो अकेले अकेले की, सिंगल की हमने बात की थी। अब यहाँ पर आते हैं सबकी बात। सबकी बात, सबका मतलब है प्लूरल। सिंगल के बाद क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर सब के सब मौजूद हैं, हमने कहना है कि जी उनके नाम, जब उनके नाम आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये इस्म जो है, इसकी जमा में हम लिखेंगे, इस्म की जमा हो जाएगी क्या? अस्मा। इस्म की जमा क्या है? अस्मा। प्लूरल क्या होगा? अस्मा। अच्छा फिर उनके साथ जो प्रोनाउन होगा उनके, ये उनके है ना, नाम तो हो गया अस्मा, और उनके क्या होगा? हुम। तो यहाँ ये आएगा उनके नाम अस्माउहुम। अस्माउहुम, क्या बोलेंगे? अस्माउहुम, देयर नेम, देयर नेम, अस्माउहुम। उनके नाम। हाँ अस्माउहुम। अस्माउहुम, अस्मा- अस्माउहुम। अस्माउहुम। हाँ अच्छा। अब उनकी बजाय अगर हम ये कहते हैं कि तुम्हारे नाम, तुम सबके नाम, यानी बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं, बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगा कि जी तुम्हारे नाम, तो वो क्या होगा? हुम की जगह कुम लगा देंगे, काफ लगा देंगे। अस्माउकुम, अस्माउकुम, क्या होगा? अस्माउकुम। अस्माउकुम, यानी शाबाश। फर्क उनके और अस्माउकुम। तुम्हारे में क्या होगा? हा और काफ का फर्क होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा इसमु का, इसी तरह यहाँ हम करेंगे अस्माउकुम। वहां हमने पढ़ा इसमुहु, तो यहाँ हम कहेंगे अस्माउहुम। सही हो गया। अब इसी तरह गर्ल के लिए, अगर लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, बहुत बहुत सारी हैं, तो हम उनके नाम के बारे में कहेंगे, उनके नाम, तो वो क्या हो जाएंगी? अस्माउहुन्ना। क्या होगा? अस्माउहुन्ना। हुन्ना उनके नाम, उन लेडीज के नाम में ये हम हुन्ना लगाएंगे, कुम या हुम नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अस्माउहुन्ना। क्या लगाएंगे? अस्माउहुन्ना। अच्छा अगर हम तुम्हारे अस्माउहुम। नाम, हाँ अगर लेडीज या गर्ल्स हमारे सामने हैं, हमारी बहनें हमारे सामने, उनसे हम बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम, तो फिर हम क्या बोलेंगे? अस्माउकुन्ना। क्या बोलेंगे? अस्माउकुन्ना। तो अब हमें ये मालूम हुआ कि प्लूरल के लिए जो बॉयज हैं, अगर वो दूर हैं, हम किसी को बता रहे हैं उनके नाम, तो फिर हम कहेंगे अस्माउहुम। क्या बोलेंगे? अस्माउहुम। और अगर हमारे सामने कोई है, सारे बॉयज, उनको हम वो बोल रहे हैं तुम्हारे नाम, तो फिर वो क्या होगा? अस्माउकुम, कुम, अस्माउकुम। फिर गर्ल्स के लिए उनके नाम, या लेडीज के लिए उनके नाम, अस्माउहुन्ना, अस्माउहुन्ना। सही हो गया। फिर तुम्हारे नाम गर्ल्स के लिए अस्माउकुन्ना। जब रुकेंगे तो कहेंगे अस्माउकुन, अस्माउकुन। ठीक है, हो गया। समझ आ गई अब आपको यहाँ तक? जी। जी। शाहिर को समझ आ गई? सामी को समझ आ गई? जी। जी। शाबाश। चलें जी अगली स्लाइड पे चलते हैं अब हम। अच्छा अब यहाँ हम एक बार फिर जरा
देख लें कि ये या हमने इस्तेमाल की थी किसके लिए, इसमी के लिए, मेरा, समझे, इसमी, जब मेरे के लिए या इस्तेमाल होती है, बॉय के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। ठीक हो गया। अच्छा, का है यहाँ पर, ये था तेरा, तेरा के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, का, बॉय के लिए का और गर्ल के लिए की, इसमुखी, इसमुका। ठीक हो गया। अच्छा, बॉय के लिए हमने इस्तेमाल किया था यहाँ, हाँ इस्तेमाल किया था, उसका, उसका। सही हो गया। तो इधर गर्ल के लिए हमने इस्तेमाल किया हा, इसमुहा। अच्छा, एक चीज जो आपने पीछे नहीं देखी थी, हम उर्दू में या इंग्लिश में दो के लिए हमारे पास कोई लफ्ज नहीं होता, हम दो के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ अरबी में दो के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर हम ये कहें कि जी वो दो लड़के, तो हम कहेंगे उनके नाम, उन दो लड़कों के नाम, तो फिर हम बोलेंगे इस्मुहुमा, इस्मुहुमा। इसी तरह दो लड़कियों के लिए भी हम कहेंगे इस्मुहुमा। अच्छा, इधर जमा के लिए हमने वही बोला, उनका या उनके, हुम, और लड़कियों के लिए हुन्ना, मर्द के लिए तुम्हारा, कुब, और लड़की के लिए कुन्ना। अब आपने इसको याद करना है, ये जो लफ्ज है ना, इनको याद आप करेंगे तो आपको फौरन हर चीज याद हो जाएगी। फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा ताकि आप उसके मुताबिक फिर अगले लेसन में आप वो चीजें मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी। अच्छा, अब आ जाए इस तरफ। एक लफ्ज है अरबी का, हम बोलते हैं ना क्या, अब पीछे तो हमने जाना तुम्हारा नाम, अब हम ये कहें, पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, जैसे मैंने पहले बोला कि अरबी में नाम, इस्म पहले आता है, नाउन पहले आता है और प्रोनाउन बाद में आता है। अच्छा, क्या, जब हम बोलेंगे ना क्या, तो ये अरबी में बोलते हैं माँ। माँ का मतलब है क्या, माँ का मतलब है क्या। अच्छा, यहाँ है माँ इस्मु का, इसम हमने पहले पढ़ा, का भी हमने जान लिया, इस्मु का तुम्हारा नाम। अब इससे पहले अगर हम माँ लगा देते हैं तो फिर ये क्या होगा, ये माँ का मतलब है क्या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या नाम तुम्हारा। ठीक है, ये तो हो गया इसका लफ्जी माना। अब हम आते हैं, आगे चलते हैं, तो मस्मुका, यहाँ अब आप आ जाए। अब आप एक दूसरे से आपने सवाल करना है और आपको जवाब मिलेगा। तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे मस्मुका। क्या बोलेंगे, मस्मुका, मस्मुका। तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। इसमी, याद है ना मैंने बोला था इसमी मेरा नाम, ये इसमी आ गया और आगे अब्दुल्ला ने अपना नाम बता दिया। मेरा नाम अब्दुल्ला है, इसमी अब्दुल्ला, इसमी अब्दुल्ला। तुम्हारा नाम क्या है, हमने माँ को याद करना है, मस्मुकी, ये हमने लड़की के लिए बोला है। तुम्हारा नाम क्या है, लड़की के लिए जब बोलेंगे मस्मुकी, क्या बोलेंगे, मस्मुकी, मस्मुकी, मस्मुकी। अब वो लड़की जवाब देगी मेरा नाम लीना है, इसमी लीना, इसमी लीना। तो अब आ गया, ये चार चीजें हमने, दो चीजें जान ली, मस्मुका, मस्मुकी। ठीक है, लड़के के लिए मस्मुका और लड़की के लिए मस्मुकी। तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, इसमी अब्दुल्ला, इसमी लीना। समझ आ गई अब आपको, माँ का मतलब समझ आ गया, क्या है इसम का मतलब समझ आ गया, शाबाश। का भी आपको मतलब पता हो गया, तो अब ये बिल्कुल आसानी से आपको पता चल गया। नेक्स्ट जी। अच्छा, इसी तरह वो तो था तुम्हारा, अब यहाँ हमने उसका नाम क्या है वही बोलना है। इसमुहु, हमने हमें पता चल गया इसमुहु, और उससे पहले हमने माँ लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, मस्मुहु, मस्मुहु। उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे जवाब में आया कि इसमुहु आबिद, इसमुहु आबिद।
اس کا نام عابد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عابد ہے، اسمہ عابد۔ اچھا اب گرلس کے لیے ہم نے پوچھنا ہے تو کیا بولیں گے؟ مسموہا، مسموہا، کیا بولا؟ مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ مسموہا۔ اچھا جی اب ہم نے جواب دیا اس کا نام لینا ہے، تو ہم بولیں گے کیا؟ اسموہا لینا، اسموہا لینا، اسموہا لینا۔ تو اب آپ نے یہ جان لیا کہ اسم کے ساتھ میرے لیے کیا لگانا ہے، تمہارے لیے کیا لگانا ہے، بوائے کے لیے کیا لگانا ہے، گرل کے لیے کیا لگانا ہے، سنگل کے لیے کیا لگانا ہے، اور پلورل کے لیے کیا لگانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے آگے چلیں۔ اب یہ ہیں 3 لفظ جو میں آپ کو ایکسرسائز کے لیے دے رہا ہوں، بیتن، شمطتن، قلم۔ بیتن کا مطلب گھر، شمطتن کا مطلب بیگ، آپ کا جو اسکول بیگ ہوتا ہے، قلم آپ کا پین۔ ٹھیک ہے، اب میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، شروع میں جیسے ہم نے پڑھا اسم تھا نا، اسم کی جگہ آپ نے لگا دینا ہے بیت۔ صحیح ہو گیا سائم؟ اسم کی جگہ آپ نے لگایا بیت، اور اس کے آگے آپ نے یا لگایا تو اس کا کیا بن گیا؟ بیتی، بیتی۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اسی طرح اگر تمہارا گھر تو کیا کہو گے؟ بیتو کا۔ کوئی لڑکی ہے اگر اس کا ہو گے بیتو کی۔ صحیح آ گیا؟ شمطتو، شمطتی، قلمی۔ اب یہ 3 لفظ آپ کے پاس ہیں، آپ نے نیکسٹ جو ہے جو کلاس ہوگی اس میں آپ نے مجھے یہ میں آپ سے کوشچن کروں گا کہ یا کو کہاں استعمال کرتے ہیں، کا کو کہاں استعمال کرتے ہیں، کی کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم کیسے استعمال ہوتا ہے، اور ہننا کہاں استعمال ہوتا ہے، کننا کہاں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی کوئی کوشچن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ سر آپ سلائیڈ گروپ پہ بھیج رہے ہوں گے؟ ہاں بھیجیں گے، اور یہ قلم کا مطلب؟ بھیج دیں گے۔ ٹھیک قلم کا مطلب ہے پین، شمتا کا مطلب ہے بیگ، بیتن کا مطلب ہے گھر۔ تو میں نے آپ کو جو یا اور کا اور کی اور ہما، ہم، ہننا یہ بتائیں، ان کے ساتھ آپ نے ان کو لگانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب سمجھ جی آ گیا؟ اگر ہم لوگ ہے لگائیں گے آگے تو ہے کو عربی میں کیا ہاں، کہتے ہیں؟ ہے عربی میں نہیں ہوتا، عربی میں ہے نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کہا نا کہ تیرا نام کیا ہے، تو صرف ہوگا کہ تمہارا نام کا مطلب اسمو کا، مسمو کا۔ تو عربی میں ہے نہیں ہے، ہیں بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی انگلش میں از آر یہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں از آر اور ہے وغیرہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے ویسے ہوتا ہے۔ اسمی سے جو ہے میرا نام، اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، آٹومیٹیکلی وہ ترجمہ آپ کریں گے اس کا اس طرح سے۔ اور کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ لے، ٹائم رننگ۔